गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? यस सर, Ragul यस। ji, good यस morning. सर। Thank you for the fantastic welcome. Good morning. Wow, we have 365 plus people. So 365 1 year. एक दिन अगर एक एक आदमी का हो गया तो 365 डेज हो गए यहाँ पर, राइट? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं चैट बॉक्स पे देख पा रहा हूँ एवरीबॉडी इज विशिंग मी गुड मॉर्निंग एंड लॉट ऑफ एनर्जी। फंटास्टिक फंटास्टिक। तो आज का वेबथॉन सेशन जो है इसके अंदर मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ एंड आई थिंक last 3 weeks we have been discussing something very 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 interesting। वो है सक्सेस के बारे में। हम लोग अपने सक्सेस के लिए क्या हम लोग फिजिकली मेंटली तैयार है, इस सवाल का जवाब हम लोग पाने की यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। तो आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस टुडे आल्सो। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इस वेबथॉन में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। If you're applying, please raise your hand. Thank you. Wow, wonderful, wonderful. I think all of you are keeping your videos on, and there is very less. I think we can see बहुत कम लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपनी वीडियो को ऑन नहीं रख रहे हैं। I really appreciate whoever has kept the videos on. It's a very very interesting and motivating thing for me to see everybody. आप लोगों को गैलरी में देखते हुए तो so you are applying it, right? तो मैं जानना चाहता हूँ how you are applying it. So let's pick some people here. रुबुल जी, आप मुझे हेल्प करिए। इफ somebody is raising the hand, तो we have Rakshita who's raising the hand here. Rakshita, good morning Rakshita. So please, I'm going to put you in the spotlight. Acha, I put you in the spotlight. Yes Rakshita, you can also unmute yourself. I'll just give you the option here, 1 second. Yes, आप unmute कर सकते हैं and हमें बता सकते हैं कि how you are applying this. Good morning, sir. Good morning, Rakshita. Where are you from? कहाँ से आप? I'm from Mangalore, sir. Team अच्छा, Haripurasad. you're from Mangalore. अच्छा, ये है Rakshita from Mangalore. Okay, Rakshita, tell me, we have been discussing last 2 weeks about this is the 3rd week, and we are talking about applying these things in our daily life. So, what is that which you have applied, and how did you find benefit out of it? हमें बताइए. Thinking about your sessions, Okay. I really loved about mindset. Okay. Actually, for success, first thing we have to prepare is our mind. Okay. And that session was really connected to me because that day I couldn't keep my video on actually. Okay. And I was listening to your session and suddenly a few points I was like, okay, I'd been speaking about these with my associates and the exact point you were sharing in the webathon. And I was Okay. like, yes, first of all, I have to prepare my mindset. Okay. And without preparing my mindset, I cannot achieve success in this industry. So Okay. first thing, that session and any other sessions for that matter. So slowly I'm applying that in my business, in my life, and I'm seeing tremendous changes. And actually, even Hariprasad sir spoke to me. I was not able to get up in the morning early, and now I'm applying that too. So we used to, but during lockdown, I was not able to get up, and now again I've started getting up at 6, and I have to take it to 5 now. So Beautiful. yes, so I'm seeing tremendous changes in my energy levels as well as my team, my business, everything because of what I'm applying here. So thank you so much for the session, sir. It's Fantastic, Rakshita. You have made our day. You have inspired most of the people here, those who are watching. So you're getting up early in the morning and you want to actually raise the bar, right? Fantastic. So all the best, Rakshita, for that. And in the coming weeks, I want to see you that you are raising the bar and becoming better and better, right? So, okay. So who else? Who else has applied whatever has been discussed? जो हम लोगों ने discuss किया है यहाँ पर, उसको अगर किसी ने apply किया और आपको अच्छा लगा और result मिला, तो भावेश बैशिया जी गुवाहाटी से, तो आपको मैं spotlight पर add कर रहा हूँ। भावेश जी, good morning. आप unmute कर सकते हैं अपने आप को और आप हमें बता सकते हैं what is that? Good morning. नमस्कार. Yes, sir. Very good morning, sir. Very good morning, sir. Good morning. Yes, भावेश जी, बताइए आपने किस प्रकार का फायदा उठाया? सर Tell me. सर, आपका जो मैंने वेबिनार सीखा है, एक बात मेरे समझ में आ गया, मैंने अप्लाई किया। मुझे मेरा जो ड्रीम्स अल्टीमेट ड्रीम्स क्या होना चाहिए सर? कोऑर्डिनेट सेंस करना है। मेरा जो एसोसिएट मैंने अभी तक लाया है मेरे टीम में, उनको क्या करना है, पहले उसको ई और एस से उसको बी में ले जाना है, उसको सक्सेस करना है। अच्छा। और जिससे ऑटोमेटिकली मेरा
जिम सक्सेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा जिम आ जाएगा। फिर Very good. मेंटली मेरे मुझको प्रिपेयर रहना पड़ेगा सर, मेंटली खुद को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रहना पड़ेगा एनी टाइम। फिर अपने फिजिकली प्रिपेयर रहने के लिए अच्छा टिप्स दिया सर। मॉर्निंग उठ के ग्रेटिट्यूड देना है सर, भगवान को प्रणाम करना है। फिर सर 4 ग्लास 5 और 4 ग्लास हनी और लेमन के मिक्स करके वो पानी पीना है। अच्छा, तो अच्छा, फिर दिन का शुरुआत करना है। और उसके पहले काम क्या होना चाहिए, अपना स्माइलिंग फेस के साथ क्या है, मॉर्निंग हम जो क्या है फोटो देना है हमारा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जो- बहुत ये अच्छा सर लगा भावेश जी। सो आपने अप्लाई किया ये सारी चीजें और आपके अंदर कोई चेंजेस आप देख पा रहे हैं लास्ट 2 वीक से? ये सर बहुत Fantastic. चेंज हुआ है सर। मेरा टीम बहुत एक्साइटेड है सर। वेरी तो गुड, उन लोगों को वेरी समझ गुड, में आ गया क्या है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड भावेश जी। एंड बाकी सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, योर स्पीड इज योर टीम स्पीड। फिर से हिंदी में बताऊंगा मैं आपको, आपका जो स्पीड है वो ही स्पीड होगा आपके टीम वालों का और या आपकी टीम की। तो डेफिनेटली हमेशा एज ए लीडर खुद को एक्साइटेड रखना, खुद को एक्टिव रखना, खुद को बहुत ही एंथुसियास्टिक, उत्साह भरित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पर भावेश जी हमें बताया। एंड वन मोर पर्सन एंड देन वी मूव अहेड। तो कोई और है जो शेयर करना चाहते हैं जो आपने अप्लाई किया इस वेबथॉन में, जो आपने सीखा? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, anybody I'm going to see in the gallery. कुंदन जी हैं, अच्छा, यशवित जी हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। 1 second, let me see in the other gallery also. रवि गडकर जी हैं यहाँ पर। अच्छा, we will give chance to somebody called Ravi Gadkar here from here. Others, don't worry, I'll give you a chance. So good morning, Ravi sir. Good morning. You can unmute yourself. सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, नमस्ते। Where are you from? कहाँ से हैं आप? सर मैं बेंगलुरु से हूँ सर। बहुत बेंगलुरु बढ़िया। से बात अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, रवि जी बताइए, how did this webathon help you to become better in the last 2 weeks? What is that you have applied and how you got a good result? Firstly, thank you for inspiring us, sir. Every day, almost every day, whenever we see your photo on Facebook or some other social media, I get inspired. Thank you very much. Yes, go और ahead. सर आप वही आपका वेबथॉन देखने के बाद अभी मैं कुछ दिन से I could not able to get up in the morning, तो कुछ थोड़ा लेजीनेस आ गया था। आपका वेबथॉन देखने के बाद सीरियसली कुछ डिसीजन लिया है सर। सो रोज सुबह 5:30 को उठ जाता हूँ और फिजिकल एक्सरसाइज तो पक्का अभी छोड़ दिया था, शायद 4-5 महीने से छोड़ दिया था, वॉकिंग जाना छोड़ दिया था, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया हूँ सर। सो आई एम फीलिंग बेटर डेफिनेटली बिकॉज आई एम कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज इतना सब कुछ चल रहा था बीच में। तो इसे आपका वेबसाइट देखने के बाद डेफिनेटली मुझे फायदा हुआ है सर। सुबह उठता हूँ तो एक्टिविटी तो पक्का बन ही जाता है। और शायद आपका कभी पुराना आप डायरी देख रहा था तो आपने कभी बताया था कि टू डू लिस्ट बनाओ, तो 2 दिन से वो बना के वो फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ सर। ट्राइंग टू अचीव 100% एज पर माई टू डू लिस्ट। Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Fantastic. Thank you, Ravi ji. That was Ravi ji from Bangalore. Thank you, Ravi ji. And now फिर से finally I want to go to the gallery. अगर किसी ने एक्सरसाइज करना शुरू किया 1 hour sweating और आपको उसमें से बहुत अच्छा लग रहा है, कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड if anybody is sweating for 1 hour. अच्छा, we have Vishnu Sakia from अच्छा at Spotlight. Good morning Vishnu ji. Good morning. कहाँ से हैं आप? Unmute yourself. Good morning, sir. Good morning. मुझे तो पता है आप कहाँ से, आप दुनिया को बताइए कहाँ से आप। Yes. मैं असम से हूँ। अच्छा, और सर ये जो सेशन है, ये सेशन मेरा जिंदगी में बहुत कुछ सेंस लाया है। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में मैं भी बहुत लेजी हो गया था। अच्छा, वो मॉर्निंग तो उठता था लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता था। अभी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है और पानी भी वो जो पीना के लिए आप बोला था वो भी पी रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं शायद आपको मैसेज भी किया था। यस। और उसी वजह से टीम में भी एक मोमेंटम आया है और सभी लोग जो लोग ये अप्लाई किया है उनको भी अच्छा महसूस हुआ है सर। अभी मैं एक्साइटेड हूँ वो जो सोशल एंड फाइनेंशियल के बारे में सुनने के लिए, वो सुनने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, डेफिनेटली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच विष्णु जी, ऑल द बेस्ट टू यू। और जो अभी आप स्वेटिंग कर रहे हैं, रोज 1 hour आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके वजह से डे टाइम में दिन का एनर्जी लेवल कैसे है और
Any changes? Are you seeing any change? अपने body को light feel कर रहे हैं या are you feeling more lighter and more active, more energetic? क्या changes देख पा रहे हैं आप before and यस after? सर, यस सर, एनर्जी तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोगों का संडे बीओपी हुआ था, वहां भी कुछ एसोसिएट मुझे बोला था आपका एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज का ही रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग दिन भर गाड़ी में रहते हैं और डिजिटल होने की वजह से हम लोग सीआर पे बैठते रहते हैं, इसीलिए मॉर्निंग जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वो हम लोगों को मोटिवेट करता है और बहुत ज्यादा एनर्जी वो एक्सरसाइज देता है सर, ये मैंने महसूस किया। और जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा, जो सर ने बोला है वो करके दिखने से ही पता चलता है ये इफेक्टिव है या नहीं है। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। Fantastic. Thank you, Bishnuji. Thank you very much. Yes, so that was Thank you, Bishnu sir. Thank you. Saikia from Upper Assam. तो दोस्तों fantastic. See, this is what is the beauty. आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है चैट में भी टाइप करके डाल सकते हैं कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर 1 hour, आई हैव स्टार्टेड जॉगिंग फॉर 1 hour. आप चैट में डालिए, आई विल रीड इट आउट इफ आई फाइंड इट इन बिटवीन. और बाकी चीज यहाँ पर आज वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द सेम लाइन. अब देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली दिस करंट सीजन. अभी का जो सीजन जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ. 1 second, आई विल कीप द गैलरी ऑन. अच्छा, यस, ओके. तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर मी टू बी सो एक्साइटेड? पहली चीज ये है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स ऑफ 2021 on 28 December by the central government, but by the consumer ministry, it has created a huge hope. अब मैं आपको बता रहा हूँ, direct selling industry is going to be on the rise, and we have program, we have planned a lot of programs, बहुत सारे programs, और 2022 onwards, this industry is going to change. और जो भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोगों को सक्सेस मिले. और इस वेबथॉन को, इस कम्युनिटी को हम इसीलिए हम लोग इतना एक्टिव रख रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ फंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. और इधर जितने भी लोग हैं, आई वांट टू सी एवरीबॉडी इज ग्रोइंग. सो सक्सेस के लिए वन इज ऑफ कोर्स द लीगली द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिंग फॉरवर्ड एंड हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल टू बिकम सक्सेसफुल. इस इंडस्ट्री को उन्होंने एक स्थान, एक क्या बोलूं मैं, एक सम्मान, एक रेस्पेक्टफुल मंच पर उन्होंने लाया. एंड नाउ इज द टाइम फॉर ऑल द डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया. इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फंटास्टिक ब्राइट फ्यूचर. तो and this is the time for us to actually wake up. And क्या होता है ना, I think Tabassum madam from Bangalore, she is drinking water right now in front of me. That's very good. अगर आप रोज पानी पी रहे हैं, अगर आपके पास सामने है, so keep this. Yeah, and I can see Naini Naresh also drinking water in a green mug. Fantastic. So keep drinking water. We have Kushal Paisal, who is also having 1 mug of water. Beautiful. So friends, keeping yourself hydrated is very, very, very important, because जब मैं 2018 में, when I went to Singapore to attend the training program by Tony Robbins, yeah, Rekha Jain ji, good morning. You are also having the same वाला, ऐसे वाला आपके पास भी है? अच्छा, बहुत अच्छा है, right? So when I went to Singapore, or when I met the legend Tony Robbins, he was also talking. उन्होंने भी बताया कि you should have more and more water, keep sipping water in between during the training program. और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, that tip I wanted to share here. जो खाना हम लोग खाते हैं, ऐसे फूड हमें सेलेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट थिंग, ही इज एक्चुअली टेलिंग मोर ऑफ वेजिटेरियन फूड, बिकॉज वो कहते हैं कि वेज फूड इज बेटर देन नॉन वेज फूड. एंड सेकंड थिंग, फॉरगेट अबाउट वेज एंड नॉन वेज, उन्होंने ये बताया जो खाना हम खाते हैं जिसके अंदर 70% वाटर कंटेंट है, वैसे फूड खाने से हमारा एनर्जी लेवल ऑल्सो विल बी बेटर. In the food which has got more than 70% of water content, that kind, because our body is also having more than 70% of water content, आपको पता ही है. So keeping food, having food, consuming food जिसके अंदर पानी का content ज्यादा है, that is also one more way of keeping ourselves more and more active, and keeping yourself hydrated is very, very important, so that the body can throw out the toxins. चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको आज नेक्स्ट डायमेंशन पर लेकर जाता हूं. देखिए, अब हम लोग जो पानी पीते हैं, what happens? पानी, it is actually thrown out of the body once we drink water. एक बार हम लोग पानी पीते हैं, उसके बाद we use it, our body uses it, and जो भी पानी detoxify होता है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको the body throws it out. So पानी पीते हैं और पानी शरीर से बाहर जाता है. हम खाना भी खाते हैं, और जो खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो लेफ्ट आउट है अनवांटेड, उसको भी द बॉडी इज रिमूविंग आउट.
water is coming in, water is going out, food we are having, food is also going out. Same way आज मैं थर्ड लेवल पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, दैट इज द इमोशनल लेवल. अब इमोशंस जो हम रिसीव करते हैं या हम फील करते हैं, उस इमोशन को भी हमें रिलीज करना चाहिए, उसे हमें क्लियर करना चाहिए, डिटॉक्स करना चाहिए. और आज मैं थोड़ा सा उस डायमेंशन पर आपसे बात करना चाहता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल जो इमोशन हम रिसीव करते हैं, you know, for example, suddenly somebody says, oh, you're looking very smart, so it's a very positive emotion, right? कोई आपको कहता है कि you are an useless fellow, right? That is a kind of a negative, or I would say it is not a pleasant thing to hear. तो हमको हर्ट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर जो भी इमोशनल हर्ट हम लोग रिसीव करते हैं, शायद अभी हो सकता है, इन द पास्ट भी हो सकता है, बचपन से जो भी हमने इमोशनली जो हर्ट हमने रिसीव किया है, वो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी शरीर के अंदर आया तो शरीर से बाहर गया, खाना हम खाते हैं और अनवांटेड लेफ्ट ओवर बॉडी इज थ्रोइंग इट आउटसाइड. बॉडी इज सच ए ब्यूटीफुल मैकेनिज्म. अब ये इमोशंस जो है, whatever emotions are coming, especially the toxic ones, वो हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए. यदि वो बाहर नहीं जाता है, वो अंदर ही रह जाता है, that converts into poison, that converts into a negative energy, that converts into a toxin हमारे शरीर के अंदर. तो हमें क्या करना चाहिए? We have to also release those things. जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा हो सकता है, एंगर, राइट? और जैसे किसी के ऊपर नफरत, किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी को नफरत करना, और फीलिंग हेट्रेड, किसी पर हमें एकदम ना हेट्रेड फीलिंग आता है, राइट? हम उनसे बहुत नफरत करते हैं. एंड मे बी जेलसी भी एक तरह का नेगेटिव इमोशन है. जेलसी का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी को देखते हैं, उनका सक्सेस देखते हैं या उनके पास अच्छी चीजें हैं, वो बहुत खुश हैं, तो उसे देखकर हम हैप्पी फील नहीं कर पाते, खुश नहीं रहते. दूसरों को खुशी रहते हुए देखते हुए हम खुश नहीं रहते. दैट इज ऑल्सो वेरी बैड. एंड ग्रजेस मतलब किसी पर बदला लेने का एक एटीट्यूड, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में रिवेंज लेने के लिए सोचना, उनके ऊपर नफरत रखना, ये बहुत ही नेगेटिव इमोशन है दोस्तों. एंड स्पेशली कोई इंसान जो लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, he has to be free of all the baggages of the past, especially the emotional baggage जो है, उसको we have to leave and come out. For example, जो टॉक्सिन्स, जो इमोशंस हम रिसीव करते हैं, शायद वो बचपन में हो सकता है, अपने फ्रेंड से हो सकता है, अपने रिलेटिव से हो सकता है, अपने पापा मम्मी से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. When we receive that और उसे हम रिलीज नहीं करते, उसे हम लेट ऑफ नहीं करते, लेट गो नहीं करते हैं, तो वो अपने बॉडी में रह जाता है. इट क्रिएट्स मेंटल एंड फिजिकल डिसीजेस, और आई वुड से डिसऑर्डर on the physiological level or and also on the psychological level. तो letting go those toxins, उस toxins को clear करना, जैसे पानी पीने से अपना शरीर के अंदर there is a kind of a detoxification, अपनी emotions का भी release करना बहुत important है, right? So body releases the food and air unconsciously. जैसे आप पानी पीते हैं और अभी बेबेतौन पर बैठे हैं या आप वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, पानी पीने के बाद या खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर सिस्टम ऐसे बन गया कि वो कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियसली, बिना आपके ध्यान, बिना आपके फोकस, बिना आपके माइंड अप्लाई किए हुए, वो ऑटोमेटिकली इट गेट्स प्रोसेस. दैट इज हैपनिंग ऑन अ अनकॉन्शियस और आई वुड से सबकॉन्शियस लेवल. जैसे आप चपाती खाते हैं या परोठा खाते हैं, वो खाने के बाद बॉडी को खुद पता है उसको कैसे प्रोसेस करना है आपकी बॉडी में. आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो लिक्विड को भी बॉडी इज ऑल्सो एबल टू प्रोसेस इट एंड रिमूव द अनवांटेड. लेकिन जो इमोशनल चीजें हमारे ऊपर, जो हमारे माइंड पर, हमारे इमोशंस पर जो असर पड़ता है, स्पेशली जो आई वुड से द नेगेटिव इमोशंस, वो जो है उससे अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपने इमोशन से उसे रिलीज करने के लिए हमें कॉन्शियसली कुछ करना पड़ता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेशली बिकॉज अगर आप उड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फ्लाई, स्पेशली आई कीप फ्लाइंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी. अब ये बैगेज जो हम लेकर जाते हैं एयरपोर्ट में, लिमिटेड बैगेज ही अलो करते हैं. अगर हमारा बैगेज, अगर फॉर एग्जांपल इट्स मोर देन 10 किलोस,
और आई थिंक इफ इट इज मोर देन 7 kilos, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है इन दी चेक इन काउंटर. They always want the customer or the passenger to travel light. And remember this statement. आपको मैं ये बताता हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था ये स्टेटमेंट बहुत साल पहले, लेकिन उसको मैंने अपने लाइफ में इमोशनली अप्लाई कर लिया. और वो ये है, जब हम ट्रैवल करते हैं, whenever you travel, less luggage, more comfort. फिर से आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, less luggage means more comfort. Especially आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि minimalists are increasing. You know, people are talking about minimalization या minimalist. What is the culture or what is this cult called minimalist? Minimalist वो लोग होते हैं जो बहुत कम चीजों से अपनी जिंदगी को चलाते हैं. जैसे उनके पास अनवांटेड चीजें बहुत कम रहता है. फिजिकल की बात कर रहा हूं, जैसे मतलब 10 कपड़ा रखना नहीं, वो मिनिमम 2 या 3 कपड़े रखते हैं. और बहुत सारी चीजें घर के अंदर रखना, वो बहुत कम चीजें रखते हैं, राइट? तो मिनिमलिस्ट. सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक टुडे. तो इमोशनली अगर आप लगेज बहुत कैरी कर रहे हैं, बैगेज आपके पास बहुत ज्यादा है, इमोशनल बैगेज, वो जो वजन जो है उसके वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप अपने माइंड को क्लियरली नहीं रख पाएंगे. यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्लाउडिंग यानी बादल. जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था बैंगलोर टू ऊटी, एंड बैंगलोर टू ऊटी जो है इट इज लाइक बैंगलोर टू देहरादून, राइट? सॉरी, दिल्ली टू देहरादून. तो द रूट इज लाइक फॉर एग्जांपल फॉगी, बहुत फॉग रहता है, आप आगे देख नहीं पाओगे. स्पेशली यू नो इन नॉर्थ इंडिया एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट आजकल द मौसम जो है बहुत खराब है, राइट? तो स्पेशली पीपल जो लोग ट्रैवल करते हैं व्हीकल्स में, उनको स्पेशली वो फॉग रहने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ा नहीं सकते. देयर स्पीड इज ऑलवेज लिमिटेड, राइट? तो क्या होता है, जब मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम बैंगलोर टू ऊटी, I was not able to go fast क्योंकि you know something was blocking. आगे जो है the windshield was not very clear, it was very foggy. बर्फ यानी the moist हम लोग जो कहते हैं ना, because of that उसके वजह से मैं आगे देख नहीं पाता था. So अब सडनली क्या हो गया, मेरे सामने एक लॉरी ने मुझे ओवरटेक किया और लॉरी मेरे से आगे निकल गया. बिकॉज आई वॉज इन अ कार, मैं कार चला रहा था, तो लॉरी जब आगे निकल गई तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू इंक्रीज माई स्पीड बिकॉज लॉरी वॉज अहेड ऑफ मी एंड लॉरी वॉज एबल टू सी बेटर बिकॉज इट्स अ बिगर व्हीकल. तो मैं लॉरी को देखकर लॉरी के पीछे जब गया तो ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड बढ़ गया. सो पॉइंट इज, जब हम लाइफ में सक्सेस के और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर इमोशनली इफ वी आर नॉट क्लियर, इमोशनली इफ वी आर नॉट प्योर, लेट मी यूज द वर्ड प्योर, इमोशनली इफ वी आर नॉट क्लियर एंड इमोशनली इफ यू आर नॉट प्योर, हम आगे देख नहीं पाएंगे, हम क्लियरली मेंटल क्लैरिटी पा नहीं सकते हैं और हम एनर्जी को हमारे अंदर ब्लॉक करते रहेंगे. So energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. यानी शक्ति जो है उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, राइट? लेकिन उसका एक आकार से दूसरे आकार हम दे सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर आप खुश रहना चाहते हैं, इट्स एन एनर्जी. अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, एनर्जी. बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एनर्जी. यू वांट टू इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोगों पर असर मतलब प्रभावित रहना चाहते हैं आप, दैट इज ऑल्सो एनर्जी. और बहुत सारे लोगों को कुछ देना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एनर्जी. बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, व्हाट इज मनी? लेट मी गिव यू क्लैरिटी. पैसा भी एनर्जी है. व्हाट इज मनी अकॉर्डिंग टू मी? मनी इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मनी इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर आप बहुत पैसा लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एनर्जी. तो इसीलिए मैं आपको लास्ट 3 वीक से एनर्जेटिकली आपको मैं बेटर बनाना चाहता हूं. बिकॉज रुका हुआ पानी, थका हुआ इंसान कहीं पहुंच नहीं सकते. रुका हुआ पानी, थका हुआ इंसान कहीं पहुंच नहीं सकते. और हम लोग अपने लाइफ में वी आर ऑल ट्रैवलिंग सोल्जर्स. और हम लोग अपने लाइफ में ना वो कहते हैं ना वो एक गाना जो हम सुनते थे, मुसाफिर हूँ यारो
ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, राइट। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए यू नीड मोर एंड मोर फ्यूअल। अगेन फ्यूअल, इट इज ऑल्सो एनर्जी। तो इसीलिए मैं आपको एनर्जेटिकली तैयार कर रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग, सुबह उठना, अपने आप को, बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना, पानी पीना चाहिए सो दैट इंटरनली यू आर स्ट्रांग एंड मोर एनर्जेटिक, इट क्लेंसेस यू। सेकंड थिंग, 1 hour स्वेटिंग, दैट ऑल्सो पुट्स योर बॉडी इन अ वेरी, योर फिजियोलॉजी इन अ वेरी फैंटास्टिक स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल। एंड उसके बाद मैंने बताया था यू हैव टू स्वेट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आफ्टर दैट कीपिंग योर माइंड वेरी वेरी अलर्ट एंड फोकस्ड। तो मेंटली क्या क्या करना चाहिए, लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स, आई थिंक यू पीपल रिमेंबर। आज मैं थोड़ा इमोशनल लेवल पर बात कर रहा हूं, बिकॉज सम ऑफ द पीपल, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर मैं देख पाता हूं कि बहुत एनर्जी जो है वो लॉक हुई है। एनर्जेटिकली वो इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं अंदर से। जैसे आप कुछ लोगों को देखो तो उनसे 5 मिनट बात करना ही कम है, वो रोना शुरू कर देते हैं। सर आपको पता नहीं, मेरे बचपन में ना मैंने कितना मुसीबतों से गुजरा, मेरे पापा बहुत मेहनत करते थे, घर में पैसा बहुत कम। ये तो हम सब लोग जानते हैं, सबकी अपनी अपनी दुख भरी कहानी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, I have also gone through a lot of trauma in my childhood. बचपन में I have gone through lots of challenges. और मैं भी ये जो विक्टिम वाला मेंटालिटी या इमोशन लेकर घूमता था। अरे why you are not successful? भाई साहब आपको क्या पता है हम किस प्रकार के परिवार से आते हैं? क्या पता है आपको हम किस घर से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार के परिवार से बिलोंग करते हैं? क्या आपको पता है? आप एक बार मेरे गांव में आकर देखना, कितने मुश्किल की जिंदगी जी। अरे भाई हम सब लोग जानते हैं, वी ऑल हैव अ पेनफुल पास्ट। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज दोनों हाथ जोड़कर आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, आपको अपने पास्ट में रहना नहीं चाहिए। प्लीज डू नॉट रिमेन इन योर पास्ट, बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू द पास्ट। और अपने पास्ट, गुजरी हुई जिंदगी जो है उसे देखकर कहिए, मैं तुझे आज अलविदा कहना चाहता हूं, बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू द पास्ट। तो पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ बहुत गलत हुआ होगा, आपको किसी ने मिसयूज किया होगा, आपके साथ बहुत गंदी चीजें उन्होंने किया होगा, आपको किसी ने धोखा दिया होगा, आपको किसी ने गाली दिया होगा, आपको किसी ने फिजिकली मारा पीटा होगा, आपके माँ बाप या आपके रिलेटिव्स या कुछ भी हो सकता है, और आपके दोस्तों ने आपको, आपके साथ कुछ भी गलत किया होगा, गलत व्यवहार किया होगा, पैसों में, रिलेशनशिप आपका जो है उसमें कुछ लोगों ने खिलवाड़ किया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेट मी टेल यू, हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, शिकार जो है, राइट, उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। हम फ्लाइट में जो ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर्स वैसे ट्रैवल करते हैं, हम लोग उड़ना चाहते हैं। यदि आप उड़ना चाहते हैं, कितने लोग उड़ना चाहते हैं? तो दोस्तों उड़ने के लिए पंखों की जरूरत है, वो तो इंडस विवा ने हमें दिया है। आप लोग देख सकते हैं इंडस विवा का जो लोगो है, इट इज द विंग्स, एंड इंडस विवा सेज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ चांस। हर एक इंसान जिसके अंदर ड्रीम है, हर एक इंसान जिसके अंदर सपने हैं, उस इंसान को, उस सपने को एक मौका जरूर देना चाहिए। तो इंडस विवा ने तो हमें एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दे रखा है। सो हम लोग उड़ सकते हैं, लेकिन वी हैव टू लीव द बैगेज बिहाइंड। और इफ यू वांट टू फ्लाई, you should have very very less luggage and you should feel very very light. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके कंधों पर ये इमोशनल ब्लॉकेज है, इमोशनल दर्द अगर आपके अंदर है, तो प्लीज आज उसे रिलीज कर दीजिए, आज उसे आजाद कर दीजिए। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस, दुख भरी कहानी, अपनी पास्ट की जो दुख भरी जिंदगी की यादें, उससे रखते हुए हम उसको बंधन में नहीं रखते हैं, हम खुद उस बंधन में रह जाते हैं। हम खुद उस प्रिजन के अंदर
हम लोग रह जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं, आज मैं आपको कुछ इनपुट्स देना चाहता हूं जो मेरे लाइफ में मैंने फेस किया और मैंने अप्लाई भी किया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर मार्च 6 आई वाज अरेस्टेड। कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही किया। आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया। और मुझे मेरे ऊपर प्रेस में, जो पेपर में, मीडिया में अलग अलग नेगेटिव चीजें डाला गया। मेरे फैमिली को बहुत इसके वजह से सफरिंग हुई। मुझे पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत मेरे ऊपर दबाव लगाया गया। और उधर से वापस आने के बाद आज मैं जल्दी से, झट से, जैसे जब हाथी नीचे गिरता है उसको उठने में वक्त लगता है, लेकिन मैं हाथी नहीं हूं, मैं घोड़ा हूं। मैं गिरा, झट से मैं उठ गया। उसका भी कारण यही है क्योंकि मैं इमोशनली अपना एनर्जी लेवल जो है उसको मैं ठीक से मेंटेन करता हूं, और अपने अंदर का जो इमोशंस है उसको कैसे रिलीज करना, उसको कैसे मतलब गुड बाय कहना, लेट गो करना, वो मैं जानता हूं। सो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये टेक्निक। अपने मेरे साथ जो हुआ है शायद आपके साथ इससे और भी बुरा हुआ होगा, लेकिन उस पास की दुखी कहानी को लेकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं सकते, और यू कैन नॉट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते। तो आज का जो सेशन के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, प्लीज इसको आप नोट डाउन करें, इसको अप्लाई करें। द फर्स्ट थिंग, अपने अंदर की जो इमोशंस जो पेनफुल है, दर्द भरी है, दुख भरी है, उन इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वो पर्सनल हो सकता है, बहुत ही इमोशनल पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है जो पास्ट में आपके साथ हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज राइट इट इन अ पेपर। ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो पेपर एंड पेन, दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियंस इन माय लाइफ। मेरे टेबल पर आप देख सकते हैं, देयर विल बी लॉट्स ऑफ पेपर्स, लॉट्स ऑफ नोट्स, and I'll always love having pen on my table because I keep writing. जो इधर आता है उसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर इमोशनली जो फील करता हूँ वो मैं लिख देता हूँ। तो आपके लाइफ में जो हुआ है उससे आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके बचपन के एक दोस्त ने आपके साथ कुछ गलत किया, या आपके पापा या आपके मम्मी के साथ आपका बचपन में कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, या कभी आपने कुछ एक्सपेक्ट किया किसी से कि वो इंसान मेरे लिए ये करेंगे और उस व्यक्ति ने वो नहीं किया। कभी कभी ये अपलाइन के साथ भी हो सकता है, टीम मेंबर के साथ भी हो सकता है, या बाहर के दुनिया के किसी के साथ भी हो सकता है, परिवार में किसी के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, किसी के साथ। आपके इमोशंस आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। आपको जस्ट डीप ब्रीथिंग करना होगा। जैसे यू सिट इन अ कंफर्टेबल प्लेस, कहीं पर बैठ जाइए कंफर्टेबल प्लेस में, स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का इसका कोई बढ़िया मतलब इसका कोई बहुत टेक्निक नहीं है। आप सिर्फ 5 काउंट के लिए सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 सेकेंड्स के लिए, 5 काउंट के लिए आप सांस अंदर लेंगे और 5 सेकेंड के लिए वो हम बाहर निकालेंगे। तो ब्रीथ इन 5 सेकेंड्स मतलब 1 2 3 4 5, एंड 5 काउंट्स के लिए ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप इस प्रकार की काउंटिंग पर ब्रीथिंग करते हैं उसको हम लोग डीप ब्रीथिंग कहते हैं। वो काउंट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 5 ठीक है। और एडवांस लेवल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 5 काउंट ब्रीथ इन करना और 5 काउंट ब्रेथ जो है, सांस जो है उसे रोक कर रखना 5 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए नहीं, 5 सेकंड के लिए। ठीक है, 5 काउंट्स ब्रीथ इन, 5 काउंट्स होल्ड द ब्रेथ एडवांस लेवल पर, एंड आफ्टर 5 काउंट यू कैन रिलीज द ब्रेथ। तो क्या होता है, आपका जो लंग्स का ब्रीथिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी बढ़ता है। तो दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीथिंग। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपका माइंड जो है, मन, वो शांत हो जाता है, इट बिकम्स रिलैक्स्ड। आपके माइंड में जो थॉट्स है वो भी कम हो जाता है।
तो आप ये 5 सेकेंड्स ब्रीथ इन 5 सेकेंड्स ब्रीथ आउट जो है वो आप 10 सेट करिए, यानी 5 सेकेंड्स ब्रीथ इन 5 सेकेंड्स ब्रीथ आउट, ये हो गया 1 सेट। तो 10 सेट आप करिए, यानी 50 काउंट। ओके, तो तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली यू विल बी कूलिंग डाउन, कामिंग डाउन, अपना माइंड जो है उसको आप शांत करेंगे। या किसी और प्रकार के प्राणायाम अगर आप जानते हैं, अनुलोम विलोम जो भी है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। तो ब्रीथिंग इन टू डिफरेंट नॉस्ट्रिल्स, राइट, आपको पता होगा। सो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग से रिलेटेड है वो आप करिए, ये रोज करेंगे तो बहुत बढ़िया। यदि आप इस इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में करना चाहते हैं तो भी बढ़िया, तो डू दैट। उसके बाद सिट डाउन इन अ काम प्लेस, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। एक कमरे में हो सकता है, एक पार्क में हो सकता है, नदी के किनारे में हो सकता है, समुद्र के पास हो सकता है, पहाड़ के ऊपर हो सकता है, कहीं पर भी, wherever you are free। गाड़ी के अंदर, 4 व्हीलर कार के अंदर भी बैठ सकते हैं। तो आराम से बैठ जाइए एंड जस्ट गो टू द पास्ट, अपना मेमोरी जॉगर करें, मेमोरी जॉगर, राइट। और अगर आपके लाइफ में बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपने फेस किया इससे पहले, तो वो आपको ऑटोमेटिकली झट से याद आएगा, वो सारी कहानी जो है वो आपको याद आएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो बहुत अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस, जैसे 4-5 अलग अलग आपके अंदर एंगर है या इमोशनल ट्रॉमा हुआ है आपके साथ, तो एक एक के लिए सेपरेटली करना पड़ेगा एक्सरसाइज। अगर एक है तो मैं आपको एक का बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बार आपके पापा से आप लड़ गए, ठीक है, वो बचपन में हुआ था वो, लेकिन वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ। तो उसके बाद पापा आपसे बात करते हैं, आप भी पापा से बात करते हैं, लेकिन वो जो इंसिडेंट है उसकी वजह से आप और पापा बहुत क्लोज नहीं है। आप एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, रहते थे, राइट। और कभी कभी शायद पापा इस दुनिया में आज है भी नहीं, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, राइट। वो इंसान जिसके बारे में हम बात करते हैं, अगर वो जिंदा है तो बहुत बढ़िया, अगर वो जिंदा नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। तो पापा के साथ ये हुआ, तो सिंपल कहानी मैं बताता हूं। मैं जब 12 साल का था, एग्जाम्पल 12 साल के उस टाइम पर बर्थडे के लिए पापा ने कहा था मुझे साइकिल गिफ्ट करने वाले हैं, और उस दिन मैं बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत उम्मीद के साथ मैं बैठा था, पापा मुझे साइकिल दिला रहे। लेकिन पता नहीं पापा के साथ क्या हुआ उस दिन, पापा वो भूल गए। और मैं जब पापा को जाकर पूछा तो उन्होंने मना किया, या मैं कभी कभी पूछा भी नहीं, उस दर्द को अंदर ही मैं रख लिया। उस दिन से पापा के ऊपर, मेरे ऊपर गुस्सा है। पता नहीं हमारे बीच में आपस में बहुत हम लोग झगड़ते रहते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट चलते रहता है, उसका क्या कारण है मुझे पता नहीं, बट पापा के साथ मेरा रिलेशनशिप उस दिन से अच्छा बना नहीं। तो ये होकर शायद 10 साल हो गया होगा, 15 साल हो गया होगा, या 50 साल भी हो गया होगा, जो भी है दोस्तों, राइट। आज उस इमोशन को रिलीज करने का दिन आ चुका है। आज हमें उस दर्द से आजाद करने का दिन आ चुका है। ये शायद पापा के साथ हुआ होगा, आपके फ्रेंड के साथ हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस है, जैसे पापा के साथ ये हुआ, तो मुझे आज चिट्ठी लिखना है पापा को। अगर पापा जिंदा हैं तो उनको मैं फोन करके उनसे बात कर सकता हूं, डायरेक्टली जाकर मैं उनसे बात कर सकता हूं। यदि पापा नहीं है या पापा के पास जाना डरते हैं आप, तो आप एक पेपर ले सकते हैं, उसमें आप लिखना शुरू कर सकते हैं, डियर पापा, मैं आपका चिंटू बोल रहा हूं। पापा, उस दिन आपने मुझे वादा किया था कि मेरे बर्थडे पे आप मुझे गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन पापा पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, आप उस दिन मुझे गिफ्ट नहीं दिए। लेकिन पापा, वो दर्द मेरे अंदर मैं आज तक सहते आया, आज तक वो दर्द मेरे अंदर मैंने रखा। लेकिन पापा, मुझे आज ये महसूस हुआ कि वो साइकिल जो है उससे ज्यादा आपका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने उस दिन साइकिल नहीं लाया, पता नहीं आपके साथ क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ भी हो सकता है। लेकिन पापा, मैं आपके ऊपर गुस्से में था उस दिन से। लेकिन आज पापा, मैं आपको उस दर्द को मैं अपने आप से मैं दूर करना चाहता हूं। तो इसलिए पापा, मैं आपसे माफी चाहता हूं और आपको मैं 100% माफ करता हूं। आपको मैं 100% इसके लिए माफ करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं।
तो इसी के साथ इस दर्द को भी मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने ध्यान से मैं दूर करना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे पापा, आपका प्यारा बेटा चिंटू, राइट? ऐसे आप आज लिखेंगे और उस पेपर को या तो आप फाड़ सकते हैं, फाड़ के डस्टबिन में डाल सकते हैं, या स्पिरिचुअली आप उसको और भी बेटर बनाना चाहते हैं तो उसको आप जला सकते हैं। यू कैन बर्न इट, आग लगा सकते हैं उसको, या कहीं पर कुछ है आग तो उसके अंदर डाल सकते हैं, या कहीं पर पानी में, समुद्र में, नदी में, ब्रह्मपुत्र में, कहीं पर भी उसको आप फेंक सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका इमोशन दूर होता है। दोस्तों ये एक बार करने से कभी कभी ये जाता नहीं है, शायद इसको 1 से 3 बार तक आपको करना पड़ेगा, कभी कभी 5 बार, 6 बार। अगर बहुत गहराई में है तो उसको गहराई से, जड़ से उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान, जो आदमी बहुत ही आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर इस प्रकार की इमोशंस के लिए, इस प्रकार की जो नेगेटिव इमोशंस के लिए जगह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को मैं जो कह रहा हूं ये समझ में आया? वेरी गुड दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एक्सरसाइज है इसे आप कर कर देखिए, यू विल फील वेरी 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 रिलीव्ड, वेरी 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 रिलीव्ड। तो एक तो मैंने कहा पास्ट, राइट? ये पापा के साथ, मम्मी के साथ या फ्रेंड्स के साथ, ये पास्ट का है। अगर आप प्रेजेंटली भी किसी के ऊपर गुस्से में हैं, या पास्ट का गुस्सा आज भी है और वो आदमी जिंदा है, सीधा फोन उठाओ, सीधा फोन उठाकर, अगर आपके दोस्त जॉन जिसके साथ आप लड़ चुके हैं या अभी भी आपके बीच में वो रिलेशनशिप बन नहीं रहा, तो आप उसको फोन करके बताएंगे, सुन सिंह जी, मैं प्रेम बोल रहा हूं, सिंह जी उस दिन आपने 4 लोगों के सामने मुझे गाली दिया, वो मुझे बहुत 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 दर्द पहुंचाया। तो सिंह जी, होते हुए भी मैं आपके दोस्त हूं, आप भी मेरे दोस्त हैं, और आपका हक बनता है मुझे गाली देने का, लेकिन आपको वो सबके सामने नहीं करना पड़ता, नहीं करना चाहिए था। खैर आपने कर दिया, नो प्रॉब्लम सिंह जी, मैं आपको माफ करना चाहता हूं। आपके साथ मैं आज तक बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं आपको इसीलिए सॉरी कहने के लिए फोन किया, क्योंकि आपने बहुत बार मुझे फोन करने की कोशिश की, मैंने आपका फोन नहीं उठाया। सिंह जी, मैं आपको माफ कर दिया, आपसे माफी भी चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, माफ करना और माफी चाहना, किसी से माफी मांगना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको दिल में लगता है कि आपने गलत किया है, तो आपको माफी मांगने से कुछ नहीं जाता है, राइट? अगर उन्होंने गलती किया, देखिए कभी कभी ऐसे होता है ना, उन्होंने गलती किया लेकिन उल्टा आप उनसे माफी मांग रहे हैं, तो आदमी का दिल जीत लेते हैं आप, आदमी के दिल जीत लेते हैं। अब मैं कहता हूं ना, वो कहते हैं कि जो माफ करता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, समुंदर की तरह, सागर की तरह उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो हर रिलीजन के अंदर, हर धर्म के अंदर हमें सिखाया जाता है माफी के बारे में, माफ करने के बारे में। या शायद वो क्रिश्चियनिटी हो सकता है, मुसलमान हो सकते हैं, हिंदूज हो सकते हैं, वो सिख्स हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन, बुद्धिस्ट, तो हर रिलीजन के अंदर माफी के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में हमें बताया जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं तो दोस्तों, क्योंकि रिलीजन में क्या होता है ना, कभी कभी हमको रोज वो सुनाते रहते हैं, वो सत्संग में या चर्च में या मस्जिद में, कहीं पर भी हमें मतलब वो बताते रहते हैं, लेकिन हम सुनते हैं, कभी कभी अप्लाई नहीं करते। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें हैं बहुत सिंपल है लाइफ में, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। जैसे वो कहते हैं ना, किसी को माफ करना चाहिए, ये हमेशा कहते रहते तो हम नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक सक्सेसफुल इंसान अगर आप बनना चाहते हैं तो इमोशनली बहुत क्लीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली बहुत प्योर, क्या बोलूं मैं, एकदम शुद्ध, राइट है? जैसे हम बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते हैं, वो एकदम कपड़ा धोकर उसको एकदम आयरन करके बढ़िया कपड़ा जो पहनना चाहते हैं, वैसे हमें एनर्जी भी पहनना चाहिए। जो हमारे अंदर पावरफुल चीज जो है एनर्जी, उस एनर्जी को भी प्योर रखना चाहिए, उसको एकदम शुद्ध रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो आज स्पेशली ये एक एक्सरसाइज जो लिखने का जो है, ये आप करिए। मैं चाहता हूं अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को पता है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो, या यू कैन कनेक्ट मी इन इंस्टाग्राम। आप ये एक्सरसाइज कीजिए और पर्सनली मुझे बताइए आप
कैसे महसूस कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वेबथॉन के अंदर ये रिस्पॉन्स आपसे चाहता हूं कि हाउ यू फेल्ट। तो एक हो गया, आप लिख सकते हैं, खत लेटर लिख सकते हैं और उसको जला सकते हैं या पानी में डाल सकते हैं, फाड़ के डाल सकते हैं, तो योर इमोशंस विल बी क्लियर। या फोन करके उस इंसान से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अदर टेक्निक, सेकंड टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थर्ड पार्टी के साथ जाकर अपना इमोशनल ट्रॉमा जो है उसके बारे में ओपनली आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नासिर जी का दोस्त हूं, लेकिन मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मेरा हो गया वर्गीस जी के साथ या लाल सिंह जी के साथ, तो लाल सिंह जी के साथ मैं डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता हूं या मैं गुस्से में हूं उनके साथ। लेकिन अगर मैं इस दर्द को, इस इमोशनल ट्रॉमा को अगर मैं नासिर जी के साथ चाय पर अगर उनके साथ मैं ओपनली डिस्कस करूं, हाँ नासिर ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके ऊपर मेरा 100% विश्वास है, राइट? जिनके ऊपर आपका 100% विश्वास है, शायद दोस्त हैं या सहेली या कोई भी हो सकते हैं आपके, उनके साथ भी अगर आप ये डिस्कस करेंगे तो आपका वजन, आपके ऊपर, आपके कंधों पर वो जो वजन, जो हैवीनेस जो है, उसको आप लाइट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आदमी उड़ना चाहता है उसको एकदम लाइट रहना चाहिए, राइट? आप देखिए ना, अगर जो लोग मुझे जानते हैं आप उनको जाकर पूछिए, हरिप्रसाद जी, प्रवीण जी, हमारे रुद्रेश जी, फ्रांसिस जी, मुझे ना गुस्सा बहुत बहुत मुश्किल से आता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत होता है, लोग मुझे छोड़कर जाते हैं, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा इमोशनली स्टेबल रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है माई इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे गलत चीजों पर मुझे फोकस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई शुड यूज माई इमोशंस टू कन्वर्ट माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए, लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए, इन्हीं चीजों के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। सो इमोशनली आई एम वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस थिंग। सो पॉइंट नंबर 1, उसे लिखें या तो उस व्यक्ति को कॉल करें। पॉइंट नंबर 2, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम जाकर शेयर करें ओपनली, दिल खोल के, कहते हैं ना, दिल खोल के आपको ये चीज बात करना पड़ेगा। एंड केयरफुल है, सावधान, ऐसे लोगों के साथ मत जाना जो लोग ऑल इंडिया रेडियो के टाइप यानी ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, तो आपकी कहानी को जाकर दुनिया में सबको बताएं। ऐसे किसी के पास आप मत जाइए, ऐसे आदमी के पास जाइए, शायद वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या कोई करीब वाले आपके, बड़े भैया, छोटे भाई, राइट, मम्मी पापा, किसी के साथ जाकर वो प्रॉब्लम जो है उसके बारे में आप ओपनली, दिल से ओपनली डिस्कस करें। ऐसे डिस्कस करने से क्या होता है दोस्तों, एक तो आपका इमोशनल बर्डन कम हो जाता है, आप लाइट महसूस करेंगे एनर्जेटिकली, एंड सेकेंड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद वो लोग आपको कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, शायद आपको वो लोग सजेशंस भी दे सकते हैं, एंड उनके सपोर्ट या मार्गदर्शन भी आप वहां से पा सकते हैं, राइट? एंड तीसरी चीज अपनी इमोशंस को, इमोशनल ट्रॉमा जो है उसको रिलीज करने का तीसरा चीज है, बहुत ही पावरफुल है, अपने आप को हमेशा किसी भी एक प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अडैप्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी लाइफ में। एज मैंने आपको बताया था, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ट्राइंग टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्राइंग टू हैव अ ह्यूमन लाइफ। हम लोग स्पिरिचुअल हैं, वहां से हम लोग आध्यात्मिक से हम लोग इंसान बने, ह्यूमन बीइंग्स बने, तो वी मस्ट हैव द स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो किसी भी एक प्रकार का स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका होना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना चाहिए। शायद वो रेगुलरली प्रार्थना करना भी हो सकता है, प्रेयर, सुबह उठकर आप प्रे कर सकते हैं, दिन भर आप कभी भी जब आप फ्री टाइम मिलता है तो प्रे कर सकते हैं, या आप मंदिर, मस्जिद, जैसे हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स नमाज करते हैं दिन में 5 बार, तो दैट इज ऑल्सो फंटास्टिक। या मंदिर आप जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, या कहीं पर जहां पर भी आप रहते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ आप प्रेयर में रह सकते हैं। हमेशा अपना माइंड जो है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाए रखना। अगर छोटा सा एक वॉचमैन ने भी आपका गेट ओपन किया, आप जब जा रहे हैं, तो वो वॉचमैन रोज आपका गेट खोलता है, लेकिन आज रुकना और उस वॉचमैन की तरफ देखना और उसको थैंक यू बोलना, एक स्माइल देना, राइट? ऐसे भी हो सकता है। दिस इज वन काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे टू स्पिरिचुअलिटी। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना, प्रेयर से अपनी दिन की शुरुआत करना, तो वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपना रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यू आर गोइंग टू लीड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो
उससे पहले खुद को लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खुद को संभाल नहीं पाता वो दूसरों को कैसे संभाल पाता है? जो खुद को लीड नहीं कर पाता वो दूसरों को कैसे लीड कर सकता है? जो खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकता है वो दूसरों को कंट्रोल में रहने का जो टेक्निक है या तरीका जो है वो कैसे सिखा सकता है? सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, राइट? सो आज का ये जो 3 पॉइंट फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। राइट डाउन द पास्ट एंड लेट गो। यू डू नॉट बिलोंग टू योर पास्ट। मैं आपको बता रहा हूं, हमें पास्ट में नहीं रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और फ्यूचर के लिए हमें काम करना चाहिए, फ्यूचर के लिए जिंदगी को बढ़िया बनाना चाहिए। और डोंट बी इन द फ्यूचर ऑल्सो। हमेशा फ्यूचर के बारे में चिंता मत करना, फ्यूचर के बारे में हमें उत्साहित रहना चाहिए, हमारे अंदर वो एनर्जी रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहना चाहिए। कल मैं एक बढ़िया जिंदगी जीने वाला हूं, अपनी मर्सिडीज बेंज में घूमने वाला हूं, ऑडी लेकर मैं घूमने वाला हूं, देश विदेश अपनी फैमिली के साथ घूमने वाला हूं। फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड रहना, लेकिन प्रेजेंट में रहना। आज जो करना चाहिए वो आज ही करें, कल की चिंता ना करें। और पास्ट के दर्द या पास्ट की जो हमारे साथ जो गुजरा हुआ है, जो गुजरी हुई जिंदगी है, उसमें मत रहना, उस दर्द वाली कहानी को प्रेजेंट में मत लाना। एंड डू नॉट मेस अप द प्रेजेंट एंड ऑल्सो द फ्यूचर। तो फ्यूचर इज वेरी एक्साइटिंग, प्रेजेंट जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए प्रेजेंट को, और पास्ट जो होता है उसे वहीं पर रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सो राइट डाउन इन अ पेपर, क्लियर इट, या उस आदमी को फोन करके बात करें। और जरूर याद रखना, प्लीज कनेक्ट विथ मी इन क्राउन प्रेम, दैट इज माय फेसबुक आईडी। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इन फेसबुक यू कैन कनेक्ट, और इन इंस्टाग्राम शेयर विथ मी योर एक्सपीरियंस, हाउ यू फेल्ट, क्योंकि वो मुझे, मेरे लिए ना, इट विल बी एन एनकरेजमेंट टू नो हाउ द थिंग्स जो मैं लोगों को मैं बता रहा हूं, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ टू इंप्रूव माई सेल्फ। तो दैट्स द फीडबैक। सो कितने लोग मुझे फीडबैक देने वाले? वेरी गुड। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट विथ मी, राइट? एंड अगर मेरे फेसबुक आप लाइक फ्रेंड बने नहीं बने नो प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम में मेरा फॉलोअर बने नहीं बने नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग माय फॉलोअर्स बाय दिस। आई नो वेरी वेल इफ आई एम गुड, डेफिनेटली आई विल हैव गुड फॉलोअर्स। सो यू कैन शेयर इट इन योर इंस्टाग्राम और इन व्हाट्सएप और इन फेसबुक। एंड द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग इट डाउन, यू आर कॉलिंग दैट पर्सन। सेकंड वन, किसी और के साथ शेयर करना। तीसरी चीज, अडैप्ट मिनिमम वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो वन इज प्रेयर, या यू कैन बी इन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, या किसी को थैंक यू बोलना मतलब हमेशा बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड इट कैन आल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग चैरिटी या स्पिरिचुअली एक्टिव इज हेल्पिंग अदर्स। दूसरों को हेल्प करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इंडस वीवा में वी आर हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस व्हिच यू कैन अडैप्ट, जो आप अपने आप के लिए अडैप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को पैसा दे सकते हैं, किसी गरीब लोगों को आप कुछ खाना खिला सकते हैं, that is also kind of a spiritual practice। या आप मंदिर, मस्जिद, चर्च में, गुरुद्वारा में जाकर प्रे कर सकते हैं, that is also a very good practice। so these are the ways, इन तरीकों को अपनाकर अपने आप की एनर्जी लेवल को संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने आप की एनर्जी लेवल को भी बढ़िया तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज हमें बहुत दूर जाना है, लंबी मतलब सफर है, तो डेफिनेटली वी नीड लॉट ऑफ फ्यूल, लॉट ऑफ एनर्जी, जो हमें बाकी बेकार चीजों पर एनर्जी, हमारा जो है फ्यूल, ईंधन जो है उसे खराब नहीं करना चाहिए, राइट? सो दोस्तों, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द पास्ट। आज आपको बेल मिलना चाहिए, आपको आज आजादी मिलनी चाहिए, और आप आगे की फ्यूचर क्लियरली देखना चाहिए। वैसे एक नजरिया, वैसे एक विजन आपका आज मिलना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपना जो स्पेक्टेकल जो है उसको हमेशा ऐसे साफ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आगे की जो चीज है उसे क्लियरली देख पाए, राइट? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस, समस्याएं आने वाला है, क्योंकि समस्याओं को पार करके हम अपने सपनों के करीब, मंजिल के करीब हम जल्दी से चले जाएंगे, राइट? सो इसी सोच के साथ आज का इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करना चाहता हूं। विष्णु ने कहा कि फाइनेंशियल और सोशल चीजें वो जानना चाहते हैं, तो दैट आई थिंक विल गो टू द नेक्स्ट वीक। बट जाते जाते दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन। हाँ, चैट पर यहाँ पर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, लेकिन मैं वो देख नहीं पा रहा हूं। बट इसी के लिए मैंने फेसबुक पर फेसबुक लाइव एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों का एक
ब्लेसिंग और एनर्जी मैं चाहता हूं, लव आपके प्यार में चाहता हूं, ताकि वो सक्सेसफुल बने। वो एवरी सैटरडे 11 AM में फेसबुक पर लाइव आने वाला हूं। अगर आप 11 o'clock फ्री नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर लाइव में आकर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आई विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सक्सेस, बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, या पर्सनली मेरे बारे में, राइट? So whatever your questions are, you can ask me, because I want to interact with you and build a community जहां पर हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन तीसरा आदमी जो उसे देख रहा है शायद उसको भी इसका बेनिफिट मिले। तो ऐसे एक कम्युनिटी में बिल्ड करना चाहता हूं वर्चुअली। तो इसीलिए फेसबुक लाइव इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो नोट डाउन योर टाइमिंग्स एंड फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, एंड लेट अस गेट कनेक्टेड एंड गो अहेड एंड get connected and stay connected through the Facebook Live. Okay, so take care. This is your friend and partner and your companion in success, Prem Kumar, Royal Black Diamond Ambassador, signing off. Have a fantastic Friday. Love you all, and lots and lots and lots and lots of love to all of you. Stay blessed wherever you are. अपने आप का ख्याल रखना. Thank you very much. See you next week in the next webathon, and tomorrow morning in the Facebook Live. Take care. Bye bye.